एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने बाइसेक्शन मेथड को स्टडी किया था और आज की क्लास में हम रेगुलर फॉल्सी मेथड को स्टडी करेंगे। रेगुलर फॉल्सी मेथड, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन और कॉर्ड मेथड, ये तीनों इसी के नाम है। देखिए, जो हमारा ये मेथड है रेगुलर फॉल्सी, ये भी हमारा इटरेटिव मेथड है और इट्स आल्सो रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन, बट कंपैरिजन टू बाइसेक्शन मेथड इट रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ इटरेशन। यदि एक क्वेश्चन को यदि आप बाइसेक्शन से सॉल्व करोगे तो हो सकता है वो 10 इटरेशन पर हो, बट उसी क्वेश्चन को जब आप रेगुलर फॉल्सी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको वो 10 से कम इटरेशन में मिल जाएगा। भले ही 8 में मिले, लेकिन 10 से तो कम इटरेशन में मिल जाएगा। यानी इसकी जो स्पीड है रूट्स देने की कंपैरिजन टू बाइसेक्शन मेथड, दैट इज फास्ट। नाउ इट इज फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड। एंड सपोज कीजिए हमारे दो पॉइंट हैं, स्टार्ट विद द इनिशियल, इट स्टार्ट विद द टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रूट से x1 एंड x2। जो हमारा वहाँ इंटरवल होता था वो हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगा यहाँ x1 और x2। If for which f of x has opposite sign, then by linear interpolation, the next approximation join the point x1 f of x1 and x2 f of x2। ये मेरा कर्व है। अब देखिए, ये कर्व का ग्राफ है और ये जो कर्व का ग्राफ है ये मेरा क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली रूट्स यहाँ होगा। लेकिन जब हमने इस कर्व के दोनों एंड पॉइंट्स को क्या किया, एक कॉर्ड से ज्वाइन करा दिया, तो ये हम जानते हैं कि कॉर्ड भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया, तो रूट से भी होना चाहिए। अच्छा, फिर हम क्या करें, इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। जो नया पॉइंट आया उससे हमने कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और जो नया पॉइंट मिला उसको फिर हम वहां ले गए, उसको फिर हमने इस पॉइंट से ज्वाइन करा दिया। और इस काम को हम करते गए तो देखते जाएंगे, हम यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर आगे जाएंगे और बेसिकली वी विल अप्रोच टुवर्ड्स द रूट्स। पॉइंट इज क्लियर? दिस इज द false position of the roots and this is the actual position of the roots. And whenever we are perpendicular from this point and joining this point to this x2 and f of x2, we will get the new approximation. Again, whenever we will draw perpendicular from this point to this graph and again joining this point, we will move to the exact roots. I think it is clear. That's why what we are doing, और एक पोजीशन ऐसी आएगी, we will replace this graph by this chord. That's why हम इस ग्राफ को या इस फंक्शन के ग्राफ को इस कॉर्ड से रिप्लेस करेंगे. That's why this method is known as chord method. And this is the false position of the roots. That's why this method is known as method of false position. I think it's clear. Okay. वही मैंने यहाँ मेंशन किया है जो थ्योरेटिकली लिखा है कि the point x1 and x2 by the straight line, the point where this line intersect the x-axis is the next approximation to the roots. And let us suppose that the intersection of the x-axis at x3, then there are three possibility. F of x3 is 0, we have the root at x3 जो हमने पहले बताया था. F of x1 and f of x3 can be of opposite sign, then the roots lies between the x1 and x3. x2 is replaced by x3. And iterative procedure of x3 is repeated, and iterative procedure is repeated if f of x1 and f of x3 are of the same sign, then the roots lie on the interval x3 x2, thus x1 is replaced by x3 and iterative procedure is repeated. The iterative procedure terminates when size of the interval less than the previous iteration. स्लोप में हमने बताया है और जो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया है वो ये है, xi plus 1 is equal to xi minus 1 into f of xy minus xi into f of xi minus 1 over f of xi minus f of xi minus 1. f of xi minus f of xi minus 1 represent the slope of the curve in the current interval, and if the values of the expression becomes very small, it will introduce a large amount of error in the next approximation. Consider the problem.
given that one of the roots of the non-linear equation x cube minus 2x minus 5 is equal to 0 lie in the interval 1.75 and 2.5, यानी एक आपका x1 दे रखा है, एक आपका x2 दे रखा है. Find the root correct to the four places of decimal या four significant digit. x1 है, x2 है, फंक्शन की x1 पे वैल्यू नेगेटिव, फंक्शन की x2 पे वैल्यू पॉजिटिव. तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हमने क्या क्लेम किया कि रूट्स लाइज बिटवीन x1 एंड x2. हमने x3 निकाला, x3 फॉर्मूले से निकाला इससे, और फंक्शन की x3 पे वैल्यू नेगेटिव है और फंक्शन का x1 और x2 का वो ग्रेटर देन 0 है. तो therefore x1 is replaced by x3. Now for the next iteration x1 is 2.0944 and x2 is 2.5, and for iteration 2 x1 is this and x2 is 2.5. तो हमने x3 निकाल लिया, फंक्शन की x3 वैल्यू नेगेटिव है, तो रूट्स अब नया इंटरवल क्या होगा, x1 is replaced by x3 2.0793 and 2.5. ऐसे ही हमने अब हमारा इंटरवल क्या होगा 2.0793 2.0793 एंड 2.5. तो x3 कितना हो गया 2.0916. फंक्शन की x3 में वैल्यू नेगेटिव, तो अब जो इंटरवल होगा वो क्या होगा 2.0916 एंड 2.5. फिर हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे फोर्थ इटरेशन पर. तो हमारा जो इंटरवल होगा वो होगा 2.094 एंड 2.5. फिफ्थ इटरेशन पे हम करेंगे तो इंटरवल होगा 2.094 एंड 2.5. एंड जब हम सिक्स इटरेशन पर करेंगे तो 2.0944 एंड 2.5, एंड 2.094 is approximately equal to 5. We observe that 4, 5 and 6 प्रोसीजर इज नो चेंज. यानी अब क्या होगा चौथे पांचवें छठवें इटरेशन पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, रूट्स वही आ रहा है 2.0945 2.0945. तो वी ऑब्जर्व दैट द इटरेशन 4, 5 and 6 प्रोवाइड नो चेंज एट द फोर सिग्निफिकेंट पोजीशन in the successive approximation of the root. Therefore x is equal to 0.294 as the desired solution correct to four significant digit or four places of decimal. एक चीज आपने बाइसेक्शन मेथड में देखी, दिस इज द सॉरी रेगुलर फाल्सी मेथड में आपने एक चीज देखी होगी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड. इन बाइसेक्शन मेथड both the endpoints are changed, but in regular falsi method one point is always fixed and only one point vary or one point is changed. Clear? I think it's clear. कोई डाउट नहीं होगा. दिस इज अबाउट द रेगुलर फाल्सी मेथड. क्लियर होगा.